Today, what we are going to do, we are going to cover two case studies of our topic, that is IT capabilities. And the first of these two case studies are Springs.com, and the second case study is the Otis Elevator. So let's begin our discussion of Springs.com. Okay. So can you see the slides in front of you? Yes, sir. Okay. Okay, जी. So first, the synopsis of the case study or the background of the case study. ठीक है जी. So, in a nutshell, this case actually describes the transformation, that is, the complete information enabled transformation of a firm, which is actually an old line textile company. ठीक है. ये बेसिकली प्रोड्यूसर हैं होम प्रोडक्ट फैशन के. ठीक है. और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली जो इनके कहेंगे इनके जो बायर्स हैं. ठीक है. जहाँ पे इनकी जो प्रोडक्ट्स जो है सेल की जाती हैं. ठीक है. दे आर सोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन इंटेंसिव रिटेलर्स. ठीक है जी. अच्छा, ये जो फर्म है दैट इज स्प्रिंग्स, राइट. इट्स क्वाइट एन ओल्ड टेक्सटाइल कंपनी. ठीक है. और इसका एक बड़ा अच्छा खासा लंबा बैकग्राउंड है. ठीक है. that actually spans over 110 years. ठीक है. So definitely a very old firm, 110 years old. Okay. So that means that when they are going for an information enabled transformation, so one significant challenge they will be facing would be cultural resistance. लोग जो हैं वो काम को जिस तरीके से करने के जो है वो आदी हैं. ठीक है. वो बहुत अरसा हो चुका है उनको एक पर्टिकुलर तरीके से जो है वो काम करते हुए. तो अब अगर फॉर एग्जांपल आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और ना सिर्फ इंट्रोड्यूस करते हैं बल्कि आप बात कर रहे हैं कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की, so definitely there will be a very strong cultural resistance that people would not like to do the new things as provided by the information technology. Okay. ये एक publicly held company है. ठीक है. And it's actually fundamentally a family business. और इसका जो 1998 में जो न्यू सीईओ अपॉइंट हुआ है मिस्टर बॉल्स. ठीक है. वो भी एक फैमिली मेंबर ही है. Springs.com is a large firm. Okay. जो case states that they have a sales of US dollar 2.2 billion. और जो number of employees हैं या जो size of workforce है वो है 15,000. So quite a large firm we are talking about. Okay. All right. जो न्यूली अपॉइंटेड सीईओ है बॉस. ठीक है. उसकी जो एक प्रायोरिटी है. ठीक है. एज अ सीईओ वो ये है कि जो कंपनी के जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं. ठीक है. उनको जो है वो उसने अपग्रेड करना है. और जो सेकंड उसका ऑब्जेक्टिव है वो ये है टू डिटरमाइन बोथ द ब्रेड्थ ऑफ एक्सपेंडिचर्स एंड द पेस ऑफ इनोवेशन नेसेसरी फॉर कमिंग ईयर्स. यानी कि वही जानना चाहता है कि जो इंफॉर्मेशन इनेबल्ड ट्रांसफॉर्मेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. ठीक है. तो what is going to be the amount of expenditure for that information enabled transformation. ठीक है. और ये जो इंफॉर्मेशन इनेबल्ड या आईटी इनेबल्ड इनोवेशन वो स्प्रिंग्स डॉट कॉम में लेके आ रहे हैं. ठीक है. what is going to be the pace or what is going to be the speed with which the information enabled innovation will be brought in springs.com. Okay. Moving forward. Okay. Now, what Springs Industries does? What are their products? Okay. So they produces home furnishing. ठीक है. और ये जो home furnishing की जो products हैं, they are produced under well-known brand names. ठीक है. Such as Vamsuta and Springmade. Okay. अब इनका जो home furnishing segment है. ठीक है. ठीक है. It accounts for around 82% of their total revenue.
तो उसका मतलब जो है वो ये हुआ कि जो उनका जो होम फर्निशिंग प्रोडक्ट है, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट सेगमेंट फॉर springs.com. ओके. और ये जो होम फर्निशिंग सेगमेंट है, ठीक है, इसमें जो प्रोडक्ट्स ये लोग बनाते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं जनाब, ठीक है. So they produce a broad selection of bath products, including towels, rugs, and shower curtains, baby products, and window hardware and covering. So these are the types of product under the home furnishing segment that they produce. अच्छा, अब अगर होम फर्निशिंग प्रोडक्ट्स की जो मार्केट है या जो इंडस्ट्री है उसकी अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसमें जो आपको आपको जो जो प्रॉफिट्स आपको जो है मिलते हैं, ठीक है, दे आर डिपेंडेंट ऑन वेरियस फैक्टर्स. वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं ना? पहला जो फैक्टर है वो है फास्ट एंड फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट डेवलपमेंट. सेकंड फैक्टर है शॉर्ट प्रोडक्शन साइकिल. और थर्ड फैक्टर है एबिलिटी टू रिप्लेनिश स्टॉक क्विकली. सो that simply means that in order to stay competitive, in order to keep getting higher profits, you need to have these three things. You should be able to produce fast and flexible products, right? Then your production cycle should be short. And third, that you should be able to replenish your stock quickly. अब springs.com के जो कस्टमर्स हैं, ठीक है, वो हमने पहले ही बात को बताया कि दीज आर लार्ज स्केल और मेगा रिटेलर्स, ठीक है. अब इनमें जो नोन नेम्स है वो कौन कौन से हैं? सच एज वॉलमार्ट, के मार्ट एंड टारगेट. दीज आर देयर सम ऑफ देयर वेल नोन कस्टमर्स, द मेगा रिटेलर्स. अच्छा, इनकी एक्सपेक्टेशन क्या है फ्रॉम देयर सप्लायर्स? ठीक है, जाहिर बात है springs.com भी उनका एक सप्लायर है, तो उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है? उनकी एक्सपेक्टेशन जो है वो ये है कि द सप्लायर्स शुड कीप इन्वेंट्रीज प्रिसाइसली ट्यून टू कंज्यूमर्स परचेजिंग ट्रेंड्स. वो ये चाहते हैं कि उनके जो सप्लायर्स हैं वो उनको जो प्रोडक्ट की इन्वेंट्री प्रोवाइड करें, ठीक है, वो उतनी ही हो कि जो कि कंज्यूमर के परचेजिंग ट्रेंड से मैच करती हो, ठीक है. इसका मतलब जो है वो ये हुआ कि जनाब कि आप जो हमें प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो कंज्यूमर के परचेजिंग ट्रेंड के मुताबिक एग्जैक्ट होनी चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, विच इज़ अ significant challenge because every supplier will have to analyze the market extensively to understand the consumer's purchasing trend, and then they will have to provide the supplies of the product accordingly, right, so that it matches with the consumer's purchasing trend. Okay. Now, uh, since the early 1980s, okay, Springs actually is shifting its focus away from the commodity textiles for apparel, okay, to home furnishing, which are sold to retailers as finished products. अच्छा, अब ये जो पहले ये कमोडिटी टेक्सटाइल के ऊपर जो उनका जो फोकस था, ये जो कमोडिटी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स जो है बनाया करते थे, ठीक है, इस पे से इनका फोकस जो है वो क्यों हटा है और ये होम फर्निशिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है क्यों चले गए? उसकी वजह जो है वो ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम द फॉरेन competitors have emerged that are able to produce the commodity textile products more cheaply. So it's actually not a profitable segment anymore. So what Springs have done, they have shifted to home furnishing products. और ये जो होम फर्निशिंग प्रोडक्ट्स हैं, दे सेल दीज होम फर्निशिंग प्रोडक्ट्स टू retailers directly, and these home furnishing products are sold as the finished products. Now, by shifting their focus on the home furnishing products, uh, what kind of benefits Springs have achieved, right? So, by shifting their focus, they are enabled to capitalize on the trend in home fashion towards highly designed coordinating products for the bedroom and bathroom. So पहला जो उनको advantage हुआ है वो ये हुआ है कि now they can actually tailor their products, right? They can watch the consumer trends, right? And they can produce the products accordingly. Now, the
Springs aimed to become a focused supplier of products used in and around the home. And what this focus would provide them, or what kind of benefit they could gain uh, by doing this. So this focus would actually allow them to increase sales and reduce long term debt. ठीक है, ये हमने पहले ही बात की कि कमोडिटी टेक्सटाइल से जो है वो उनका फोकस जो है वो हट गया है, एंड दे हैव गॉन टुवर्ड दी होम फर्निशिंग सेगमेंट. और होम फर्निशिंग सेगमेंट में उनका एक एडवांटेज जो है वो ये है कि कंज्यूमर के जो परचेसिंग ट्रेंड्स हैं बदलते रहते हैं, कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट जो है चेंज होती रहती हैं. So they can actually come up with the new products, right? And when they come with the new products, so that means that they have an opportunity to increase their sales. And when the sales increases, the profits increases, they will have an opportunity to actually reduce their long-term debt. Now, with this opportunity that they have a large amount of money because they have entered into a new product segment by shifting their focus. So now they have a good amount of funds that they can spend on capital programs such as the information technology implementation in the organization, as well as the acquisitions. ठीक है, कौन सी एक्विजिशन? वो एक्विजिशंस के जो इनके जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, या इनके जो लॉन्ग टर्म मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, ठीक है, उस पर फिट होती हूँ. ठीक है, और जिन एक्विजिशन को इस्तेमाल करते हुए वो न्यू कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स जो हैं उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. सो here we see two things. Number one, they have funds, right? Ample funds for capital programs such as implementation of information technology into their organization. And number two, acquiring other businesses, right? So that they can get help into their long-term marketing strategy and introduce the new complementary products. Now, our case states that in recent years, the company, that the Springs.com, has made a number of acquisitions and investments. Okay. अच्छा, अब जनाब ये इन्होंने एक्विजिशंस तो कर ली, इन्वेस्टमेंट भी जो है उन्होंने कर ली हैं, ठीक है, लेकिन ये जो एक्विजिशंस हैं और ये जो इन्वेस्टमेंट हैं, ठीक है, दे आर पोजिंग एन ऑन गोइंग चैलेंज. ठीक है, अब वो ऑन गोइंग चैलेंज क्या है? वो ऑन गोइंग चैलेंज जो है वो ये है दैट हाउ दे आर गोइंग टू integrate the new businesses into Springs operation. ठीक है, पहला चैलेंज ये हो गया कि जनाब के जो आपने जिन बिजनेसेस को एक्वायर किया है उन्हें आप स्प्रिंग्स के एग्जिस्टिंग ऑपरेशन में आप किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे. और नंबर टू, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, then they are also implementing the information technology into their organization. So the second challenge would be that how they are going to manage the IT enabled transformation in their firm. अच्छा, अब with the new CEO, ठीक है, CEO साहब ने जो है वो एक बोल्ड डायरेक्टिव जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है फॉर द कंपनी. और वो डायरेक्टिव क्या है जनाब? डायरेक्टिव जो है वो ये है, प्रेजेंट वन फेस टू द कस्टमर. अब प्रेजेंट वन फेस टू द कस्टमर का मतलब क्या है जनाब? प्रेजेंट वन फेस टू द कस्टमर का मतलब जो है वो ये है कि आपके जो डिफरेंट बिजनेसेस हैं, ठीक है, दे शुड बी मॉडिफाइड इन सच अ वे दैट किसी भी बिजनेस के साथ अगर कस्टमर जो है वो इंटरेक्ट करता है तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो सिमिलर होना चाहिए. मिसाल के तौर पर जो है अगर उन्होंने कोई बिजनेस एक्वायर किया है जिसका जो है वो कल्चर डिफरेंट था, वे ऑफ डूइंग बिजनेस डिफरेंट था, तो they need to make sure that they are modified enough so that they match with the culture or the way of doing business of springs.com. अच्छा, अब इसका मतलब जो है वो ये भी है कि जनाब के जब ये प्रेजेंट वन फेज जो कस्टमर डायरेक्टिव को इम्प्लीमेंट करने जाएंगे, so there will be many management complexities they are going to face, right? Because they will have to consolidate their back office, administrative, and marketing efforts across the springs.com and its
acquisition. Moving forward, जनाब, now what is happening with respect to the IT-enabled transformation of Springs.com? So अभी तक की अगर हम इनकी सिचुएशन की हम बात करें, ठीक है, कि हम बात कर रहे हैं कि जनाब के इनका सेटअप बहुत बड़ा है, कंपनी बहुत बड़ी है, ठीक है, वर्कफोर्स बहुत बड़ी है, ठीक है, और इसके बाद जो है वो उन्होंने बहुत सारी जो है वो एक्विजिशन भी जो है वो उन्होंने कर ली हैं, एंड नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअली modifying every business that they have acquired so that they look alike, जिसकी वो बात कर रहे हैं प्रेजेंट वन फेस टू द कस्टमर. सो अभी तक की जो सिचुएशन है वो ये है कि इनके जो सिस्टम्स हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम्स अक्रॉस springs.com एंड देयर एक्वायर्ड बिजनेसेस, दे आर पुअरली इंटीग्रेटेड, राइट. पुअरली इंटीग्रेटेड का मतलब जो है वो ये है कि जनाब के बहुत सारे जो उनके बिजनेसेस हैं उसमें जो फॉर एग्जाम्पल सिस्टम्स जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है. In many instances, they are more than 10 years old. So when they talk about integrating these systems, so that they work as one system, there is a significant challenge. Many systems are actually very, very old, but they will have difficult time integrating them. Okay. Now, while they are trying to integrate their information systems over the past 5 years, okay? So what is happening with respect to basically the integration of the information system, that the growth of earning and sales has been slowed down. उसका रीज़न बुनियादी तौर पर जो है वो ये है कि जब आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जो है अगर आप बहुत ज़्यादा उलझ जाएंगे, ठीक है, उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा फोकस करने लगेंगे, तो बिजनेस जो कोर बिजनेस है, कोर बिजनेस पे आपका फोकस थोड़ा सा ऑफ हो जाएगा. जब कोर बिजनेस पे आपका फोकस ऑफ होगा तो जाहिर है कि मतलब कि आपकी जो अर्निंग ग्रोथ है और जो सेल्स है, ठीक है, वो अफेक्ट होगी. नाउ we have already discussed that by nature of the business, the springs.com is extraordinarily capital intensive, ठीक है. अभी तक की अगर हम बात करें तो केस स्टेट दैट they have spent more than $1 billion over the past decade to rebuild both plant and IT capability. ठीक है. अच्छा, now that's a very large sum of money, ठीक है, that they have spent for upgrading their plant and the IT capabilities. और केस जो है मुझे बताता है कि this level of expenditure will continue because Springs is trying to fundamentally rebuild itself. मतलब वो एक आप समझ लें कि across the springs.com, their acquisitions, every company that they have acquired, they are trying to actually consolidate and rebuild. Now, we can see that much of their capital investment is actually focused on new technology. Okay? This new technology can help springs.com produce higher quality products at lowest possible cost. So this is the same thing, same objective as we saw in the case of Richcon Steel as well, right? And the same thing that we saw in the case of Taco Bell as well. जब हमने वैल्यू प्राइसिंग की हमने बात की थी, ठीक है, हमने कहा था कि जनाब के आपने जो है वो क्वालिटी के ऊपर जो है कंप्रोमाइज नहीं करना, लेकिन आपने जो है वो प्राइस को ड्रॉप करना है, ठीक है. दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली प्रोवाइड द वैल्यू टू द कस्टमर्स. सो springs.com appears to be doing the same thing, right? But as we saw in the case of Taco Bell, in order to do so, that is not compromising the quality while dropping the price, you have to reduce your cost. And this is what the springs.com is doing, that they are spending a huge sums of money on bringing the new technology into the company so that they are able to produce high quality products at the lowest possible cost. Now, अब सवाल जो है पैदा होता है कि ये जो इतनी एक्सटेंसिव जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, सो हाउ कॉम्प्लेक्स दिस IT enabled change is for springs.com. So
according to the information provided by the case, Springs has 42 manufacturing facilities. Now, with that many facilities, right? More than 3 dozen facilities. It is very clear that the challenge is going to be huge. That is, the information enabled transformation of Springs.com is going to be a huge challenge for Springs. Okay. Now, at the same time, uh, another important thing that they need to watch for, that they are facing increased pressure from two of their tough competitors who are actually of the same size of Springs.com. अब वो competitors कौन कौन से जनाब? पहला competitor है जनाब वेस्ट पॉइंट स्टीवंस और दूसरा competitor है जनाब पिलोटेक्स. ओके. इसके साथ साथ जो आपके सोफिस्टिकेटेड मेगा रिटेलर्स हैं सच एज वॉलमार्ट, के मार्ट एंड टारगेट, ठीक है, उनकी तरफ से भी जो है वो प्रेशर जो है वो फेस कर रहे हैं, बिकॉज दीज मेगा रिटेलर्स, ठीक है, जो बेसिकली जो है उनके मेगा कस्टमर्स हैं, ठीक है, उनकी जो डिमांड्स हैं वो बड़ी स्ट्रिंजेंट होती जा रही हैं. अच्छा, ये जो स्ट्रिंजेंट डिमांड्स हैं ये किस टर्म में स्ट्रिंजेंट है, मतलब ये क्या चाह रहे हैं, ठीक है, तो दे आर एक्चुअली स्क्वीजिंग और रिड्यूसिंग द मार्जिन्स. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मुझे पहले एक प्रोडक्ट के ऊपर जो मार्जिन मिलता था, क्योंकि अब जो है वो नए नए कॉम्पिटिटर्स जो है वो अब आ रहे हैं, तो वो जो प्रोडक्ट के ऊपर जो मार्जिन मुझे मिल जाया करता था वो मार्जिन जो है वो अब रिड्यूस हो रहा है. तो पहला प्रेशर जो है वो तो ये है फ्रॉम द मेगा रिटेलर्स. और दूसरा जो प्रेशर है वो है सर्विस रिक्वायरमेंट्स, that these mega retailers, they are actually increasing their level of service requirements from their suppliers. इसके साथ साथ a new phenomena is emerging. This new phenomena is called precision shoppers. ठीक है. अच्छा, ये जो precision shoppers हैं, ठीक है, they are mostly consist of working mothers. और ये प्रिसिशन शॉपर जो हैं ये क्या चाहते हैं जनाब? ये चाहते हैं कॉम्पिटिटिव प्राइसेस एंड अ ब्रॉड एरे ऑफ मर्चेंडाइज इन वन लोकेशन. तो अब ये प्रिसिशन शॉपर जो हैं ये ऑफ कोर्स ये springs.com के नहीं है, बल्कि ये मेगा रिटेलर्स के प्रिसिशन शॉपर्स हैं. ठीक है, बट नाउ देयर आर मोर एंड मोर ऑफ प्रिसिशन शॉपर्स. और इनकी जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और जाहिर बात है कि जो इनकी रिक्वायरमेंट होगी वही रिक्वायरमेंट जो है वो फिर आपके जो मेगा रिटेलर्स हैं कि जो कि springs.com के कस्टमर्स हैं उनकी होगी कि जनाब एक तो ये कि आप हमें जो प्रोडक्ट सप्लाई करें वो सप्लाई करें कॉम्पिटिटिव प्राइसेस के ऊपर, और नंबर 2 जो आप हमें प्रोडक्ट की वैरायटी दे रहे हैं, प्रोडक्ट की वैरायटी जो आप ज़्यादा दें हमको. ठीक है, और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट all these products, a broad array of products at competitive prices should be under one roof or one location. So the consumer that does not want to go from one place to another and then another to actually complete its shopping or whatever he or she desires. Okay, ji. Now moving forward. Okay. अब हम ये देखते हैं कि springs.com जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अपने पास इम्प्लीमेंट करने की जो है कोशिश कर रहा है. सो springs.com इज नॉट एक्चुअली अलोन इन doing this information enabled or IT enabled transformation of its business. Many of its competitors are actually developing sophisticated IT systems, और जो इन IT systems का जो objective है, ठीक है, वो ये है that they are able to analyze the mega retailers' point of sales data. So what happens that these mega retailers such as the Walmart, Kmart, and Target, they provide their point of sales data to their important suppliers. Okay. And the purpose of providing this data to their mega supplier is that they would analyze this data to understand the consumer purchasing needs or the consumer purchasing behaviors, and then
modify their product line or introduce new products as per the consumer purchasing trends. And don't forget that these mega retailers also want the suppliers to provide them enough inventory to match with the consumer's purchasing trend. So it is actually very important for their mega suppliers to have sophisticated IT systems that are able to analyze this very, very large sum, very amount of the consumer sales data in order to have a clear and in-depth understanding of consumers' purchasing trends. Okay. Now, we also saw that with these capital investments on information technology and fundamentally rebuilding their business, the growth in earnings has been slowed down and the sales has dropped for Springs.com. So they have to increase their profitability, because if they don't increase their profitability, they will not be in the business anymore. So what Springs has to do? Springs has to increase the pace of its application of new technology and sources of information. ठीक है. अगर हम स्प्रिंग्स की हम बात करें या इसके हम सीईओ की बात करें, तो जो स्प्रिंग्स का न्यू सीईओ है वो ये बात को समझता है और इसको जो है वो रियलाइज करता है कि जो वे अहेड है या springs.com जो है, अगर वो सक्सेसफुल होना चाहता है इन दी लॉन्ग रन, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे कंटिन्यूली produce innovative new products that match with the consumer's purchasing trend. So continued innovation is going to be the key for springs.com success. Okay. Now, अब Springs अब इस वक्त जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेक्टर में जो है वो ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, ये इसका जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, इट हैज चेंज अ लॉट एंड presently it is a business environment where electronic commerce and marketing, ठीक है, they have become the key sources of competitive differentiation. So for example, जनाब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है वो नहीं कर रहे या इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग जो है अगर आप नहीं कर रहे, इसका मतलब जो है वो ये है कि आप जो है वो अपने आप को competitively differentiate नहीं कर सकते among your other competitors. So it is obvious that the growth of e-commerce is vital for the success of a business operating in the similar segment in which Springs.com is operating. But Springs believe that because of the nature of its product, they will continue to be sold in stores rather than on internet. So सरप्राइजिंगली स्प्रिंग्स का ख्याल जो है वो ये है कि जनाब कि इनकी जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स है, ठीक है, वो ऐसी है कि ये इन स्टोर्स जो हैं ये बिकती रहेंगी, ठीक है, और इनको जो है वो ई कॉमर्स पे जो है वो जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. नाउ वी विल सी लेटर ऑन दैट whether this philosophy or the belief of the springs.com had actually benefited them, or they need to change their thinking and go with electronic commerce. Okay. Now, what the Springs has in their mind as far as the strategy for the future, ठीक है. So इनकी जो strategy for future है वो ये है जनाब, couple of important points which they have in mind, ठीक है, for their long-term strategy or the strategy for future. The first point is the flexible product development with short cycle times. Number two, a strong customer service team. And number three, an effective inventory management. So ये जो तीनों के तीनों जो पॉइंट उन्होंने जो है वो बनाए हैं with respect to their future strategy, they are all aligned with their customer requirements, ठीक है, जो हमने पहले भी हमने डिस्कस की थी कि जनाब आपके कंज्यूमर परचेजिंग ट्रेंड के हिसाब से जो है वो आपकी इन्वेंट्री जो है वो होनी चाहिए, ठीक है, और जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट इस बात पर डिपेंड करता है कि जनाब कि आपका जो प्रोडक्शन साइकिल है वो शॉर्ट हो. So they are actually doing the same thing that the industry actually requires. Moving forward, let's talk more about the information technology implementation by the Springs.com. Okay. Now,
अगर हम आईटी इम्प्लीमेंटेशन की हम बात करें तो स्प्रिंग्स की जो है बड़ी लॉन्ग हिस्ट्री है फॉर इम्प्लीमेंटिंग आईटी प्रोजेक्ट्स इन देयर कंपनी, ठीक है। एंड फॉर 3 straight years देयर आईटी एक्सपेंडिचर्स आर फ्लैट। फ्लैट का मतलब जो है वो ये है कि दे आर एक्चुअली स्पेंडिंग similar amount of money on IT implementation projects in their company. Okay. According to the facts presented in the case, it is actually very clear that Springs is actually falling behind. Okay, in terms of needed services, uh, as they seek to reposition themselves from the सपोर्ट क्वाड्रेंट टू दी स्ट्रेटजिक क्वाड्रेंट। सपोर्ट क्वाड्रेंट टू दी स्ट्रेटजिक क्वाड्रेंट में ट्रांजिशन करने का मतलब जो है वो ये है कि आप अपनी कंपनी को जो है वो स्ट्रेटजिकली इंडस्ट्री में इस तरह से पोजीशन करना चाहते हैं दैट दे बिकम द मार्केट लीडर। ओके, ऑल राइट जनाब। अब 1992 में भी जो है वो एक नया चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है वो springs.com ने जो है वो अपॉइंट किया, ठीक है। और इस न्यू सीईओ को जो टास्क दिया गया था वो ये था दैट ही शुड एनर्जाइज द कंपनीज आईटी इनिशिएटिव थ्रू एवोल्यूशनरी। अच्छा याद रखिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ यहाँ पे वो है एवोल्यूशनरी, नॉट रेवोल्यूशनरी चेंज, ठीक है। तो एवोल्यूशनरी चेंज का मतलब जो है वो ये हुआ कि आपने जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो कोई रेडिकल चेंजेस जो है वो आपने नहीं लाने हैं, रादर आपने कोशिश जो है वो ये करनी है कि आप ग्रेजुअली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करें विद इन दी springs.com, ठीक है। ऐसा नहीं जनाब कि एकदम से जो है वो आप जो है वो इंतहाई बहुत बड़ा जो है वो आप चेंज ले आए, ठीक है, बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, अब यहाँ पे जो की इनिशिएटिव्स इन्होंने लिए हैं, ठीक है, with respect to this evolutionary change using IT initiatives, वो कौन कौन से हैं जनाब? पहला जो इनिशिएटिव है वो है टोटल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ आईटी ऑपरेशंस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो केस में बताता है वो ये है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो springs.com में जो है वो इस्तेमाल हो रही थी, ठीक है, लेकिन जो इनके एग्जिस्टिंग जो सॉफ्टवेयर थे, ठीक है, उनमें जो है वो जो नोटिस किया जाता था वो ये कि जनाब के ये सॉफ्टवेयर जो थे ये एब नॉर्मली शट डाउन हो जाया करते थे। जैसे आप देखते हैं कि जी कि आप विंडोज़ जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई एप्लीकेशन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एप्लीकेशन चलते चलते तो एकदम बंद हो गई। अब आपने जो है, या फॉर एग्जाम्पल अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आप बात करें, यू आर टाइपिंग समथिंग इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड ऑल ऑफ अ सडन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्लोजेस एंड यू विल बी सरप्राइज कि जनाब ये एप्लीकेशन जो है एकदम से बंद क्यों हो गई है, ठीक है। और एप्लीकेशन बंद हुई है तो इसका मतलब जो है वो ये होगा कि आप जो काम कर रहे थे, ठीक है, मे बी दिस वर्क was lost as well. So abnormal end of the application is not a good thing from the IT perspective, and they used to see a very large number of abnormal endings of a program in their infrastructure. So with the total restructuring of the IT operations, the key benefit they achieved was that these abnormal endings of programs that were used to be hundreds, right, per day, right? They were able to reduce this number from many hundreds to 0 or 1. So that was quite a remarkable achievement. They they achieved by total restructuring of their IT operations. ठीक है, ओके। अब ये जो अबैंड को जो इन्होंने रिड्यूस किया, ठीक है, ये करना जो है वो इनके लिए इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि हमने बात की कि जनाब के वी हैव एंटर्ड इनटू द वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की दुनिया में ऑपरेशनल स्टेबिलिटी जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है। और ऑपरेशनल स्टेबिलिटी का मतलब जो है वो ये है कि आपके जो सॉफ्टवेयर है, जो आपका हार्डवेयर है, ठीक है, वो आपको जो है वो अनइंटरप्टेड सर्विस जो है प्रोवाइड करे, एबनॉर्मल शटडाउन जो है वो ना हो, ठीक है, सिस्टम जो है वो रिलायबली जो है वो ऑपरेट करें ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो
definitely with this initiative, they were able to achieve operational stability. Moving forward, the second initiative that they took was the standardization of the infrastructure. Okay. अब अगर हम springs.com की हम बात करते हैं, there were so many direct access devices. ठीक है, अब डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस जो हैं वो कौन सी होती हैं? फॉर एग्जांपल द डेस्कटॉप कंप्यूटर्स. ठीक है, नाउ अब जब इन्होंने आईटी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इन्होंने जो है इनिशिएट किए हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो उन्होंने की है टुवर्ड्स द आईटी enabled transformation of their business. So the number of desktop computers within springs.com increased from 1000 to 3600. So there was a massive number of desktop computers that they had. Okay. अब अगर हम बात करते हैं जनाब कि what are the type of these desktop computers. ठीक है, so पहली प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं जनाब के there are a variety of desktop computers in their company. अब अगर हम केस में जो लिखा हुआ है उसको हम देखें तो वो कहता है कि जनाब द कंपनी हैज नियरली one of every different type of desktop computers. तो इसका मतलब जो है वो ये है कि अब जब वो स्टैंडर्डाइजेशन की हम बात कर रहे हैं या ब्रिंगिंग द सेम फेस की हम बात कर रहे हैं या कंसोलिडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अक्रॉस springs.com की हम बात कर रहे हैं, सो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा जो क्रिटिकल डिसीजन है वो ये है कि जनाब के अगर कि उन्होंने जो है वो जो उनका जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, या हम जैसे बात करें जो डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेज हैं या डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, उनको अगर उन्होंने स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जनाब के सेम टाइप ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर जो हैं वो पूरी springs.com के पास जो है अवेलेबल हो. ठीक है, और उसका रीज़न जो है वो ये भी होता है कि अगर आप सेम टाइप ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, सो इफ़ द हार्डवेयर टाइप इज़ डिफरेंट from one computer to another, so it is actually very difficult for the software developers to provide you the software that can run smoothly across your IT infrastructure. We were talking about the standardization of the IT infrastructure, and we discussed that there are 3,600 computers we are talking about that we need to standardize. And it is actually a daunting task. And another thing is the cost factor involved. So the cost of standardizing these 3,600 desktop computers is actually 3,000 is $10 million. So it's actually a huge price tag that they are going to face if they do it. The third prong or the third thing that they did is the successful implementation of large projects. Okay. So what they did, that they implemented a series of large IT projects. ठीक है, उसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट शामिल थे? For example, they implemented an order management system that actually involved 120 associates. ठीक है, और अगर हम बात करेंगे जी the amount of code that this particular software involved, so around 10 million lines of code. So that was quite a huge software that they implemented. Then they also implemented a software called Pacer, which was a materials resource planning or the MRP software. Okay. Then they also implemented a new human resource and common financial systems. Okay. These systems were real-time online systems that actually replaced the 3 outdated and isolated databases. And these systems were implemented across the company. So अगर हम इन तमाम चीज़ों को जो है हम summarize करें, so we can say that springs.com have actually implemented important transforming investments. Okay? And if we talk with respect to the success, right? So they are able to achieve a significant amount of success in implementing the IT projects in their company.
Okay जी, moving forward now, while all these things are happening, the IT expenditure of Springs.com have actually more than doubled. Okay, and now ये जो एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर जो है ये क्यों इंक्रीज हुआ है, ठीक है, स्पेशली मोर देन डबल. मोस्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर इज रिलेटेड टू द एयर 2000 प्रॉब्लम. एयर 2000 प्रॉब्लम जो थी बेसिकली वो ये थी कि जनाब आपके पास जो कंप्यूटर सिस्टम्स थे उनमें जो आपके पास जो जो आप एयर शो करते थे, ठीक है, वो आप 2 डिजिट्स इस्तेमाल किया करते थे एयर्स को शो करने के लिए. तो फॉर एग्जांपल एयर जो था वो फॉर एग्जांपल 96 है, 97 है, 98 है, ठीक है. अब जब एयर 2000 आ रहा था तो उनका जो प्रॉब्लम सामने आया वो ये कि जनाब okay, what air the computer would show after 99. ऐसा मतलब जब एयर 2000 होगा तो एयर 2000 में जो है वो कंप्यूटर जो है वो क्या जो एयर शो कर रहे हैं ये उसको रिवर्ट कर देंगे दोबारा, फॉर एग्जांपल जीरो जीरो और पे 01 पे, ठीक है, या जो है उसको कंटिन्यू करेंगे और जनाब वो 2001 2002 2003 समथिंग लाइक दैट. So the IT industry, including Springs.com, actually invested a very large amount of money to actually uh, remove this anticipated error from their systems. Okay. So that's why the IT expenditures during this time were actually increased by more than twice the amount that they had spent previously. Uh, we can also see that they had a team of 55 people working on it. All right. अच्छा, अब ये तमाम के तमाम काम जो है वो चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो जनरल मैनेजमेंट टीम है, ठीक है, वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है, ठीक है. वो प्रॉब्लम जो है वो ये फेस कर रही है कि जो स्टाफ है, ठीक है, Springs.com का, ठीक है, वो कंसिडरेबल प्रेशर जो है वो फेस कर रहा है, ठीक है. और जो टर्नओवर रेट है, ठीक है, वो 16% है करेंटली. और अगर हम इसको जो है वो इंडस्ट्री में जो उनका जो टर्नओवर रेट है, एवरेज टर्नओवर रेट है, उसके साथ कंपेयर करें, वो है 25%, ठीक है. तो अगर हम इंडस्ट्री के टर्नओवर रेट के साथ उसको कंपेयर करें तो 16% जो है वो इट्स लेस, ठीक है. लेकिन जो एक कॉन्सिक्वेंस है इस टर्नओवर रेट का वो ये है कि स्टाफ का जो मोराल है, ठीक है, वो रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि लोग छोड़कर अगर जा रहे हैं तो स्टाफ जो मोराल है स्टाफ का वो जो रिड्यूस हो रहा है. एंड एज अ रिजल्ट व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है, कि जो Springs.com है, now they are thinking that whether they need to hire more people, right, or they need to increase the amount of training of their existing employees, ठीक है. लेकिन उसके साथ साथ अब एक चीज़ जो हम यहाँ पर ऑब्जर्व ये करते हैं कि एम्प्लॉई का मोरल डाउन हो रहा है, टर्नओवर रेट जो है वो 16% स्टैंड कर रहा है, गो के इंडस्ट्री के जो एवरेज है उससे जो है वो लोअर है, ठीक है. Springs.com ने जो है वो जो एम्प्लॉई के जो ट्रेनिंग डेज थे, ठीक है, वो रिड्यूस कर दिए. दे वर यूज टू बी 11 days training. Now they have reduced it to 6 days. So this is actually a surprise shift or surprise change from the Spring.com given the uh, turnover rate of their employees. Okay. Now अगर हम बात करें कि जो इनकी जो मैनेजमेंट टीम है, जिस बेसिकली जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन द मैनेजमेंट टीम इज 240, ठीक है. तो जो टोटल एक्सपेंडिचर वो अपनी मैनेजमेंट टीम के ऊपर जो है वो कर रहे हैं, ठीक है, वो तकरीबन उतना ही है कि जितना जो है वो इंडस्ट्री में जो है वो इस साइज की जो है मैनेजमेंट टीम के ऊपर जो है वो स्पेंड किया जाता है, ठीक है. सो दे आर एक्चुअली not spending a greater sum of money on their general management team as compared to the industry.
Okay, now if we talk about their future, that what is going to be, what is going to happen with the Springs.com in the future. Okay, so there are so many things that require immediate attention of CEO. ठीक है, पहली चीज क्या है जनाब? पहली चीज जो है वो ये है कि while the industry is talking about electronic commerce, ठीक है, and they the Springs itself is talking about implementing the intranet and extranet, right? इस बात की कोई केस में इंडिकेशन नहीं मिलती कि कंपनी ने जो है वो कोई सिग्निफिकेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट की हो इन चेंजिंग द डेस्कटॉप ब्राउजर टेक्नोलॉजी. अच्छा, ब्राउजर क्या होता है जनाब? ब्राउजर इज एक्चुअली अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू ब्राउज द इंटरनेट. सो अगर आप जो है वो इंटरनेट या एक्सट्रानेट की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वी डिस्कस दिस टॉपिक्स इन अवर ई कॉमर्स कोर्स. तो अगर आप बात कर रहे हैं कि जनाब कि आप इंटरनेट और एक्सट्रानेट आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो have you implemented some kind of specific browser technology that will help you implementing the internet and extranets in your company? So we don't see that there is any significant investment that Springs.com has made to implement the browser technology into their company. ठीक है. अच्छा, ये जो ब्राउजर टेक्नोलॉजी है ये इनके लिए जो है वो एक मेजर चैलेंज है. ठीक है. और अगर इसके ऊपर जो है वो वर्कआउट नहीं किया जाता, ठीक है, तो फिर ये जो इंटरनेट और एक्सटरनेट को जो इम्प्लीमेंट करने की आप बातें कर रहे हैं, ठीक है, this project cannot be finished in time. So हमें जो है यहाँ पे नजर आता है कि ये बात तो कर रहे हैं ज़रूर इंटरनेट और एक्सटरनेट को इम्प्लीमेंट करने की, लेकिन इन्होंने जो है वो उस डायरेक्शन में कोई सिग्निफिकेंट जो प्रोग्रेस है वो नहीं की है. ठीक है. अच्छा, अब दूसरा जो पॉइंट है जो कि उनकी इमीडिएट अटेंशन जो है वो चाहता है, ठीक है. सो दे हैव कंप्लीटेड सम जाइगेंटिक प्रोजेक्ट्स. ठीक है. लेकिन इन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट तो उन्होंने किया है, लेकिन हमें इस बात की कोई इंडिकेशन जो है वो नज़र नहीं आती, ठीक है, दैट दे हैव अडॉप्टेड सम कॉमन डेटाबेस प्रोटोकॉल. ठीक है. हमें इस बात की भी जो है वो कोई इंफॉर्मेशन जो है वो केस से जो है वो नहीं मिलती कि Springs.com is thinking about implementing some enterprise software, ठीक है, such as SAP और Oracle. ठीक है. Now अगर हम केस को फर्दर डिटेल में पढ़ें तो हमें जो है वो ये नज़र आता है कि रियलिटी जो है वो ये है कि Springs.com ने जो अपनी मेजर आईटी इन्वेस्टमेंट्स की हैं वो इन टेक्नोलॉजीज के आने से पहले की हैं. तो हम फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें कि इन्वेस्टमेंट उनकी जो हिस्ट्री है उसको हम ट्रैक करें, तो इससे पहले कि ERP सिस्टम्स वाइड स्प्रेड यूज़ में आते, Springs.com जो है वो अपनी मेजर आईटी इन्वेस्टमेंट जो है वो कर चुका था. राइट. अब सवाल जो है वो ये है कि जनाब कि अब जब ERP या एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर जो है वो मेच्योर हो गए और ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो अब इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गए, ठीक है, तो क्या अब आपके पास जो है वो इतना पैसा है कि आप ऐसे मेजर सॉफ्टवेयर जो है उनको अपने पास इम्प्लीमेंट कर सकें? क्यों? क्योंकि आपने अपनी मेजर आईटी इन्वेस्टमेंट जो है वो तो इन सॉफ्टवेयर्स के आने से पहले आपने कर दी हैं. So it is a big challenge for Springs.com, and we have yet to see that how they are going to handle this challenge, that they have actually spent a large sums of money already, and now how they are actually going to have more money to implement these enterprise software which their competitors are implementing. Okay, अगर हम बात करें जनाब यूनिफॉर्मिटी की, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी विद रिस्पेक्ट टू द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस वेरियस कंपनी डिविजन्स. So the facts presented in the case tells us that there is a significant lack of uniformity across the company among various divisions. ठीक है. लेकिन एक अच्छी चीज़ जो है वो ये नज़र आती है कि जो कंपनी के जो जनरल मैनेजमेंट है वो टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो इन्वॉल्व है.
ठीक है, मतलब ये जो टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट आप कर रहे हैं कंपनी में, दे आर एक्चुअली एक्टिवली इन्वॉल्व विद इट्स इम्प्लीमेंटेशन. And CIO Jim Wood originally reported to the Balls that the CEO, right? And there is one important issue that they are going to face is the intense user integration in system development activities. अब जैसे जैसे ये आईटी इम्प्लीमेंटेशन जो है ये इन्हांस होगी इनके केस में, ठीक है, इनके लिए जो है ये बहुत ज़रूरी होगा कि ये जो इनकी जो सिस्टम डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, उसमें जो है ये यूज़र्स को जो है ये इन्वॉल्व करें, और सिर्फ इन्वॉल्व नहीं करें, इंटेंसली इन्वॉल्व करें. क्योंकि अगर ये यूज़र्स को इंटेंसिवली इन्वॉल्व नहीं करते, ठीक है, तो उसका जो एक बिगेस्ट डिसएडवांटेज वो होगा उनको, ये होगा कि सिस्टम्स डेवलप तो हो जाएंगे लेकिन ये सिस्टम जो है वो यूज़र के रिक्वायरमेंट को जो है वो पूरा नहीं करेंगे. तो अगर सिस्टम जो है यूज़र के रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करेंगे, दैट मीन्स दैट द IT project or the system will not be considered a success. Okay. So, for example, यहाँ पे उन्होंने बात की है जनाब OMS project की, ठीक है. OMS project was an example of a massive project that required very large amounts of new technology, ठीक है. और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था कि जो कि अल्टीमेटली इम्पैक्ट करेगा जनाब एवरी डिवीजन ऑफ द कंपनी, ठीक है. जो उन्होंने कुछ जो डिविजन एक्वायर किए थे, कुछ बिजनेस जो है एक्वायर किए थे, ठीक है. सो द सॉफ्टवेयर दैट हैड बीन इन प्लेस फॉर मोर देन अ डेकेड वर रिप्लेस्ड, ठीक है. सो OMS का जो मेजर बेनिफिट था springs.com के लिए वो ये था दैट द OMS enable Springs to respond to the new requirements of mega retailers. So, and how this OMS was able to do it because of involving the user into the system development activities. If they did not involve the user into the system development activities, it will be very difficult for them to produce a system that could achieve great results. Now, इन तमाम बातों के बावजूद कि जनाब कैपिटल IT इन्वेस्टमेंट हो रही है, प्रोजेक्ट्स जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, सब कुछ जो है वो ठीक जो है नज़र आ रहा है, ठीक है. लेकिन यहाँ पर जो एक कोर क्वेश्चन है इन फ्रंट ऑफ द springs.com वो ये है कि आर वी मूविंग फास्ट इनफ, ठीक है. अगर हमारी जो स्पीड ऑफ IT इनेबल्ड ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, वो एडिक्वेट नहीं है, तो दैट सिंपली मीन्स दैट वी विल नॉट बी एबल टू कैच अप विद आवर कंपैटिटर्स, ठीक है. So here we see that one fundamental thing that they need to watch for when we are considering this question that whether we are moving fast enough. The Springs.com have not achieved the standardization and interconnectivity. ठीक है. Standardization तो ये वही चीज़ है जो हमने पहले बात की थी, ठीक है, कि standardization of the IT infrastructure across the board, and interconnectivity means that are they able to connect all their divisions, all their businesses together using the IT? So they have not achieved both. That is the standardization and interconnectivity, or at least not to the satisfactory level. Okay. इसके साथ साथ हम ये भी नोटिस करते हैं कि Spring is facing intense overseas as well as domestic competition, ठीक है. और इस इंक्रीज कंपटीशन के नतीजे में इट इज़ वेरी मच पॉसिबल दैट स्प्रिंग्स विल नॉट बी एबल टू अचीव द मार्जिन्स दे नीड टू फंड द IT इन्वेस्टमेंट्स दे नीड. तो मिसाल के तौर पर अगर ये हम स्टैंडर्डाइजेशन की हम बात कर रहे हैं या इंटरकनेक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर में अगर springs.com इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते चाहे और वो ये सोचे कि अच्छा हम जो है वो प्रोजेक्ट्स जो है वो स्टार्ट करते हैं इन दो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, तो जो मार्जिन्स हैं इंडस्ट्री के अंदर वो स्क्वीज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज कंपटीशन. सो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल दैट द springs.com will not have enough funds to for achieving these two
objectives. ठीक है? Okay, so now the CEO has to really think that how he needs to treat the IT investments that Springs.com need to become a fully integrated 21st century company, right? और जिस बड़ा चैलेंज है वो ये है कि जनाब के इन तमाम आईटी इन्वेस्टमेंट को जो है, ठीक है, हमने ऐसा करना है कि हम अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को सेक्रीफाइस ना करें। कहने का मतलब जो है वो ये है कि हमारी जो बॉटम लाइन है, हमारी बॉटम लाइन भी जो है वो हेल्दी रहे, हमारे प्रॉफिट मार्जिन भी जो है वो अच्छे रहें, और हमारा जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी जो स्टैंडर्डाइजेशन है और इंटरकनेक्टिविटी है वो भी अचीव हो जाए। सो दिस इज अ बिगेस्ट चैलेंज दैट द सीईओ इज फेसिंग। सो इन शॉर्ट हम अगर इसकी हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि springs.com जो है वो एक ऐसी पोजीशन में है, ठीक है, कि वो अपने आप को स्ट्रेटेजिकली जो है वो फेस कर सकता है टू बिकम अ मार्केट लीडर। हाउएवर द टास्क इज daunting and springs.com has to make some difficult decisions and to take some strategic choices in order to make this happen. ठीक है जी? So that concludes our discussion of the first case study, that is springs.com. And now we shall move on to the second case study of our today's discussion, and that is the Otis elevator. अच्छा जी, ओटिस एलिवेटर का जो केस है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ओटिस एलिवेटर भी एक बहुत पुरानी कंपनी है, ठीक है, जस्ट एज springs.com. सो वंस अगेन, जिस तरह से हमने springs.com में हमने बात की थी, ओटिस एलिवेटर इज आल्सो सीकिंग एन आईटी enabled transformation of their business, and similar to the springs.com, the cultural resistance towards the IT implementation in the firm is also a big challenge for Otis Elevator as well. So, what is the objective of analyzing this case? So, in a nutshell, what this case does, this case raises the opportunities for fundamentally changing a firm's infrastructure and basis of competition through IT enablement. Another important thing, or another opportunity this case provides us is to understand the critical role of the CEO in an IT enabled transformation of a business, especially a very old, very large business. So moving forward, and if we talk about the introduction of the case study and the introduction of the Otis elevator, okay. So the main focus of the case is on long-term infrastructure transformation of Otis elevator that is enabled by information technology. Now, if we're a little bit about the Otis elevator, they are the largest elevator company in the world, and they are part of one of the largest US companies. Otis itself is more than 150 years old firm. Remember that the springs.com was 110 years old. So the Otis elevator is older than the springs.com. Okay. They have old entrenched legacy systems and deep ingrained culture. So जरा आप सिस्टम जो है वो बड़े पुराने हैं, ठीक है, और जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है वो भी बहुत पुराना है, और इट हैज़ डीप रूट्स। ओके, सो जब आप आईटी को जो है वो जब आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे और द वे ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसको जब आप चेंज करेंगे, सो यू आर गोइंग टू फेस अ वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कल्चरल रेजिस्टेंस, ठीक है। ओके, अब अगर हम इनकी प्रोडक्ट्स की हम बात करें, ठीक है, सो Otis Elevator company whose product used to be primarily mechanical, but now increasingly the chips and electronics are being used in their products. और इनकी जो प्रोडक्ट है बेसिकली, या रिमेंबर दे प्रोड्यूस एलिवेटर्स। नाउ अगर हम बात करेंगे जनाब कि हाउ द Otis Elevator makes money, there are two important activities
that they do. पहली एक्टिविटी क्या है? दे आर द मैन्युफैक्चरर एंड द डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ एलिवेटर्स. और जो अदर एक्टिविटी है उनकी वो ये है कि दे आर द सर्विस प्रोवाइडर वेयर दे प्रोवाइड ऑनगोइंग मेंटेनेंस सर्विस फॉर इंस्टॉल्ड एलिवेटर्स. तो दो इनके जो है वो मेजर एक्टिविटीज है जिससे जो है ये रेवेन्यू जो है अर्न करते हैं. पहली चीज जो है वो ये है कि दैट दे मैन्युफैक्चर एलिवेटर्स एंड नंबर टू दे प्रोवाइड द मेंटेनेंस सर्विसेज फॉर देयर एलिवेटर्स. ओके जनाब. नाउ लेट्स talk about the Otis line. Okay, and before we talk about the Otis line, let's first discuss the organizational structure of Otis. So Otis is basically a long-term bottom-up hierarchical organization. ठीक है. और अगर हम बात करें जनाब के how they operate, they are operating authority relating to handling service calls being located at the lowest level of its bureaucratic organization, that is the branch office. ठीक है. तो अब हम ये देखते हैं कि ये एक ऐसी बॉटम अप ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसमें जो सर्विस कॉल्स हैं, रिमेंबर इनका जो सेकंड इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जिससे ये रेवेन्यू अर्न करते हैं वो है सर्विस बिजनेस. ठीक है. और ये जो सर्विस कॉल्स रिसीव होती हैं, ये रिसीव होती हैं इनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में जो सबसे जो नीचे इनका जो यूनिट है, दैट इज ब्रांच ऑफिस. सर्विस कॉल्स वहां पर रिसीव होती हैं. ओके. अगर इनके एग्जिस्टिंग सिस्टम की हम बात करें, सो दे इट्स एक्चुअली अ मैनुअल सिस्टम, अ पेपर ड्रिवन सिस्टम. ठीक है. in which each month 120 offices reported up the organization. ठीक है. Their cost, the number of failures they handled and the average time it took to fix them. तो ये वो टिपिकल इंफॉर्मेशन है कि जो कि इनके 120 ऑफिसेज जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं. नाउ सो द practical implementation of this organizational setup is that the senior management is far removed from understanding the quality of service in the field. अब अगर आप देखें तो जो इनकी जो टॉप मैनेजमेंट है, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट तो ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की में जो है बहुत ऊपर है. ठीक है. और जो सर्विस कॉल्स रिसीव हो रही हैं वो सर्विस कॉल्स जो है उनको रिसीव होती हैं एट द बॉटम ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की. तो जो डेटा इनके पास रिसीव होता है कि जनाब की कितनी सर्विस कॉल्स आई, कितनी आपने जो है रिपेयर कर दी, ठीक है, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, कस्टमर का फीडबैक जो है वो क्या था. ठीक है. सो since top management is actually far away from the level where the service calls actually occur and they are resolved, so it is very difficult for them to really understand what is going on in their company. Moving forward, so अब हम यहाँ पे देखते हैं जनाब कि जो हमने पिछली स्लाइड में जो बातें की हैं. सो द प्रोडक्ट क्वालिटी, इंडिविजुअल स्टाफ परफॉर्मेंस, ऑफिस परफॉर्मेंस. ठीक है. ये वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो हैं कि जो कि आपकी टॉप मैनेजमेंट से हिडन है. ठीक है. या जो आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो इस बात को जो है सपोर्ट करता है कि आपके मतलब जो बॉटम लेवल पे जो आपके जो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स हैं या जो आपके ऑफिस हैं, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन को जो है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं सो दैट द टॉप मैनेजमेंट विल नॉट बी एबल टू हैव अ क्लियर पिक्चर of these important factors, that is product quality, individual staff performance and office performance. ओके जी. इसके साथ एक और जो प्रॉब्लम जो है वो ये है कि देयर आर नो ऑडिटेबल स्टैंडर्ड्स टू एवेल्युएट द क्वालिटी ऑफ ऑफिस रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस. ठीक है. कोई स्टैंडर्ड मौजूद नहीं है कि जिससे जो है वो आप ऑफिस रिपोर्टिंग जो होती है उसकी जो है क्वालिटी को जो है वो आप जज कर सकें कि जनाब हमें जो ऑफिस रिपोर्ट करता है, ठीक है, उसमें जो हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो क्या वो इन्फॉर्मेशन जो है वो एनफ होती है या नहीं होती. ठीक है. नाउ व्हाट इज हैपनिंग एज अ रिजल्ट, the Otis management is not able to clearly understand the quality of service that each branch of their business or each mechanic in the branch is providing to the customer. और ये जो सेटअप है, इस सेटअप को जो है वो जनाब एक बहुत तवील अरसे से जो है वो रन कर रहे हैं. इसका मतलब जो है वो ये कि अब अगर जब आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर आएंगे इन तमाम चीज़ों को ठीक करने के लिए,
So since they have been doing such things for a very long time, so there is going to be a very strong resistance from them against the new system. So अगर हम बात करें, समराइज करें, so in short, Otis Elevator is a very highly competitive service oriented business, and but they had no way of measuring and managing the service quality. So this is the basic problem with them, that they are lacking uh, the the way of measuring and managing service quality. And this is the second most important activity from which they earn revenue. So it is actually very, very crucial for them to understand this. Okay, now moving forward, Otis Line is actually an initiative taken by the Otis Elevator. So actually change this whole thing, what is happening right now. Okay. Otis Line, what it did? Otis Line changed all of this with the introduction of centralized reporting of each service incident. ये जो ओटिस लाइन सिस्टम था, इसमें जो है उन्होंने जो मेजर जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जनाब एक सेंट्रलाइज्ड रिपोर्टिंग सिस्टम उन्होंने बना दिया कि अब जो भी आप सर्विस रिक्वेस्ट जो है वो कोई भी ऑफिस जो है वो हैंडल करेगा, ठीक है, तो वो एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन को जो है वो रिपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा. सो फॉर एग्जांपल, एवरी टाइम एन एलिवेटर फेल्स, ठीक है, this failure will be reported into a central unit where it will be logged in a computer by an operator, and then एक ऑपरेटर जो है वो असाइन होगा कि जो कि एक स्पेसिफिक मैकेनिक को, ठीक है, इंगेज करेगा उस रिपेयर कॉल को बेसिकली डील करने के लिए, ठीक है. सो दैट मीन्स दैट नाउ the branch office will have no jurisdiction or no control as to which mechanic will go to fix which elevator, ठीक है. ये जो था टॉप मैनेजमेंट में जो है अपने हाथ में जो है वो ले लिया था, ठीक है. अब मैकेनिक जो है वो उसको मतलब जब एलिवेटर साइट पे जो है जब डिस्पैच किया जाता था, ठीक है, तो मैकेनिक जब अपना काम खत्म कर लेता था तो वो अपना जो भी काम था उसकी जो रिपोर्ट थी, ठीक है, उसको जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जो है वो ओटिस लाइन सिस्टम जो था उसमें जो है डिस्पैच किया करता था, कि जहाँ पर जो है कि जहाँ पे इन तमाम रिपोर्ट्स को जो है वो एक सेंट्रल डेटाबेस में जो है वो स्टोर किया जाता था, ठीक है. नाउ with Otis line, what happened? That they were able to create a very large database of elevator service call, time to repair situation where the repair was adequate, inadequate, and etc. तो अब उनके पास जो एक सेंट्रलाइज डेटाबेस जो है वो बन गया, कि जिसमें जो है वो जितनी भी फॉर एग्जांपल ये सर्विस कॉल थी, उन सर्विस कॉल्स पे क्या हुआ, ठीक है, कितना टाइम लगा, क्या प्रॉब्लम थी, किस तरह से रिजॉल्व किया गया. सो नाउ दे हैड अ सेंट्रल डेटाबेस इन विच ऑल दिस नॉलेज वाज एक्चुअली हार्वेस्टेड. ओटिस लाइन से पहले जो है वो इनके पास जो है वो इस किस्म की जो है कोई इन्फॉर्मेशन जो है मौजूद नहीं होती थी, ठीक है. जो भी ब्रांच ऑफिस जो है उनको लिख के भेज दिया करता था कि कितना एक्यूरेट था, कितना इनएक्यूरेट था, उनको उसके बारे में कुछ नहीं होता था. So they were not able to have a clear picture of the service quality and the level of quality that they were providing. Okay. Now the significant benefit that this centralized database of service calls would provide to Otis Elevator. The analysis of this database would allow the Otis Elevator to quickly understand which offices are delivering fast good service, which offices are not delivering fast good service, which elevator models are giving great repair difficulties and which ones are not. तो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी कि जो कि ओटिस लाइन को इस्तेमाल करते हुए टॉप मैनेजमेंट जो है वो ऑब्टेन कर सकती थी, which they were not able to achieve before implementing this new system. Okay, moving forward, let's see what is happening in the industry now. Okay, so with this Otis Elevator, right? Otis Elevator had a chance to actually have a focus on product redesign. ठीक है, इसके साथ साथ जो है they had the opportunity for an intense consulting with branch offices, ठीक है, कि जो कि अच्छा प्रोवाइड नहीं कर रहे थे.
Similarly, they were able to now focus on mechanics that were not doing well. ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि ओटिस लाइन जो इनका जो सेंट्रलाइज सिस्टम था उससे जो है नाउ दे वर अचीविंग मल्टीपल बेनिफिट्स. नाउ while all this happening, right, what benefit they got? They got a significant increase in service. ठीक है, okay, of course, but it was also a by product. ठीक है, क्योंकि फॉर एग्जांपल ये जो सर्विस में जो इनका इंक्रीज आया है, ठीक है, दे कैन टेक इट एज अ बाई प्रोडक्ट, राइट. Now with Otis line we see that they actually converted their bottom up organization into a top to down organization. ठीक है, और इसके साथ साथ एक और काम उन्होंने जो है वो ये किया कि इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में से जो है वो जो 2 मिडिल टीयर्स थी वो उन्होंने एलिमिनेट कर दी. नाउ क्वेश्चन अराइजेस दैट could a normal chief information officer or CIO drive this kind of deep cultural change effectively throughout the organization? तो जनाब आंसर जो है उसका होगा नो. एक चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है वो इस किस्म का चेंज जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता. ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल एंड इट इज ओनली पॉसिबल with the aggressive leadership of the CEO. अगर कंपनी का जो सीईओ है, ठीक है, वो एक एग्रेसिव लीडरशिप प्रोवाइड ना करे towards the implementation of such large scale initiative, then a chief information officer cannot implement it, especially in the case when the organization is very old and when the culture, the organization culture has very deep roots. ठीक है, 150 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, कि जो लोग जो है वो डेकेड से जो है चीज़ों को जो है मैनुअल तरीके से जो है वो करते चले आ रहे हैं. तो अब अगर आप इसका एक नया सिस्टम जो अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो इट इज एक्चुअली very difficult for people to change themselves. Okay, जनाब, अब let's move forward and see how the Otis brought other projects besides the Otis line. So they also implemented another project called e-logistics, an information transformation project. Okay, so the case says that the Otis was not considering itself as a manufacturer of elevators, but rather as a logistical and service companies. So the company was actually had having a different strategic thinking in which they were considering themselves not as a manufacturer of elevators, but rather as a service provider, service company. Okay. Okay. Now, the Otis elevator has no commitment to any individual factory. ठीक है, they decided कि जी अब उन्होंने जो है वो किसी भी मतलब जो उनकी फैक्ट्रीज जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है मौजूद हैं कि जहाँ पर एलिवेटर जो है मैन्युफैक्चर होते हैं, उन्होंने कहा कि जी कि हमने जो है वो अब इंडिविजुअल कमिटमेंट जो है किसी फैक्ट्री के साथ नहीं रखनी. ठीक है, हमने जो है वो सिर्फ उस फैक्ट्री को चलाना है, उस फैक्ट्री के साथ रहना है कि जो कि कंपनी की क्वालिटी और डिलीवरी रिक्वायरमेंट को जो है वो मीट कर सकती है. और अगर जो है वो फैक्ट्री जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट को जो है मीट नहीं करेगी तो उस फैक्ट्री का जो काम है उस फैक्ट्री को जो है वो हम आउटसोर्स कर देंगे. ठीक है, और द केस स्टेट्स the facts presented in the case, we can see that the Otis shut down 26 of their 52 factories. तो ऐसा नहीं था कि जनाब के वो सिर्फ जो है वो बात कर रहे थे. ठीक है, दे एक्चुअली शट डाउन 26 ऑफ देयर 52 फैक्ट्रीज. ठीक है, so 50% of their facilities they shut them down. So actually show their manufacturing units, their employees that they actually mean what they are saying. ठीक है, now the Otis elevator repeatedly benchmarks its manufacturing and service skills again
सर्विस कंपनीज रादर देन अदर एलिवेटर कंपनीज। ठीक है, ये हमने बात की थी कि वो अपनी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को जो है वो चेंज कर रहे हैं एंड दे थिंक दैट दे आर in the service business rather than the manufacturing business. So uh, that's why they were actually benchmarking themselves against the service companies rather than the मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। और वो जनाब वो सर्विस कंपनीज कौन सी थी कि जिनके अगेंस्ट जो है वो अपने आप को बेंचमार्क कर रहे थे। ठीक है, सच एज फेडेक्स एंड रिट्स कार्ल्टन। ठीक है, ये वो पीयर कंपनीज थी कि जिनके अगेंस्ट जो है वो अपने आप को बेंचमार्क कर रहे थे एज अपोज टू दी एलिवेटर कंपनीज। So we were talking about the organizational structure of Otis. So I was saying that Otis is actually a very heavily international company with nearly 90% of the staff being located outside the US. That simply means that when we talk about the cultural resistance, the Otis elevator is a much more difficult organization as compared to the springs.com. Okay. क्योंकि उसकी वजह जो है वो ये कि 90% ऑफ द स्टाफ जो है उनका वो आउटसाइड यूएसए है। ठीक है, दूसरा अब एक जो चैलेंज है इस कंपनी को और सेलिब्रेटर को जो है वो ये है कि दे वर यूज्ड टू बी फोकस्ड ऑन प्रोडक्ट्स बट नाउ दे आर फोकसिंग ऑन द लॉजिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट बिकॉज दे थिंक दैट दे आर नाउ देयर कोर competencies. ठीक है, एंड एज सच द प्रोसेसेस आर एवरीथिंग फॉर ओटिस एलिवेटर। दैट इज जनाब अब उन्हें पता है कि उन्होंने जो है अगर अपने प्रोसेसेस को जो है अगर सही नहीं किया so they will not be able to become competitive. Okay, now if we talk about their financial bottom line right now, so they are generating record earning. ठीक है, जो उन्होंने नए प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किए हैं उसके नतीजे में now they are able to achieve record of very high earnings. And अगर हम एक समरी में बात करें कि जनाब के ओटिस एलिवेटर की, so we can say that they are in the middle of the radical transformation of their company. ठीक है, and one key part of this transformation is the new opportunities made possible by information technology. Moving forward, okay जनाब, अब अगर आप इसका जो केस स्टडी है, ठीक है, उसमें जो है वो आप डिफरेंट टेबल्स जो है वो दिए गए हैं आपको। अगर उसमें जो है वो आप टेबल ए को देखें तो आप ये देखेंगे कि इनका जो साइकिल टाइम था, दैट इज द साइकिल टाइम फ्रॉम द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एन एलिवेटर अंटिल इट हैज बीन कंप्लीटली इंस्टॉल्ड। ठीक है, वो बड़ा सिग्निफिकेंटली जो है वो इनका इम्प्रूव हो गया। ठीक है, पहले जो है वो 18 मंथ्स इनका जो है वो टाइम हुआ करता था, लेकिन आफ्टर दिस दीज न्यू आईटी प्रोजेक्ट्स, दीज न्यू प्रोग्राम्स, तो अब वो 18 महीने का टाइम जो है वो 8 महीने का जो है हो गया। ठीक है, अब इसके साथ साथ जो हम ये भी देखते हैं कि ओटिस हैज बिकम द डोमिनेंट कंपैरेटर इन द इंडस्ट्री एंड आईटी वाज एट द कोर ऑफ द कंपनी। ठीक है, ड्राइविंग इट्स रिटर्न ऑन सेल्स फ्रॉम 13% अप टू 18%। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो आप ये देखें कि जनाब के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज एक्चुअली रियली रियली हेल्पिंग देम ड्राइव देयर फाइनेंशियल बॉटम लाइन। और ये जो यूनाइटेड टेक्नोलॉजीज है ये बेसिकली ये वो यूएस कंपनी है कि जिसका जो है वो ओटिस एलिवेटर एक पार्ट है। ठीक है, तो अब इनका जो है वो अगर आरओआई जो है वो 13% से 18% पर हो गया है, तो इसका मतलब जो है वो ये है कि नाउ द ओटिस एलिवेटर कॉन्स्टिट्यूट्स 35% ऑफ द अर्निंग्स ऑफ इट्स पेरेंट कंपनी। अच्छा, अब इसके साथ साथ ये देखते हैं कि भाई जो इन्होंने जो ई लॉजिस्टिक्स इनिशिएटिव जो है वो उन्होंने लिया है। ठीक है, वो क्या है? ठीक है, तो ई लॉजिस्टिक्स इनिशिएटिव जो है वो उसके 5 मेजर एरियाज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, अच्छा, ई लॉजिस्टिक प्रोग्राम के बारे में जो है मैं आपको ये बताता चलूँ कि ओटिस का जो फ्यूचर प्लान है, ठीक है, उसमें ये जो ई लॉजिस्टिक्स प्रोग्राम है, ठीक है, वो उसका सेंट्रल फोकस है। ठीक है, now what the e-logistics system actually provides you, so this system basically provided you the electronic links and data controls for each of the logistics
एक्टिविटीज, ठीक है। एंड एक और इम्पोर्टेंट जो बात थी ई लॉजिक सिस्टम की, वो ये थी कि इट एक्चुअली प्रोवाइडेड यू अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, ठीक है, जिससे आपको जो सबसे बड़ा फायदा हुआ वो ये हुआ कि नाउ दी ऑल दी departments or the units of Otis Elevator were enabled to coordinate across businesses efficiently, क्योंकि अब आपके पास जो है वो एक ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट था, ठीक है। तो अब आपके पास आसानी जो थी वो ये थी कि जनाब कि आपने जो है वो एक ही फॉर्म जो है वो फिल कर करके जो है वो आपने मतलब जो है वो सबको जो है वो अक्रॉस द बोर्ड जो है भेजना है, ठीक है। डिफरेंट जो है वो फॉर्म नहीं है। अगर डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं तो उसकी जो है वो इन्फॉर्मेशन को जो है वो इंटरप्रेट करना जो है वो आपके लिए जो है वो डिफिकल्ट होता है। एंड दिस सिस्टम वाज नॉट वेपरवेयर। ये मैंने अपने टर्म में पहले भी हमने डिस्क्राइब की थी। वेपरवेयर का मतलब जो है वही होता है कि सिस्टम फंक्शनैलिटी जो है वो उसके बारे में जो है वो जो फंक्शनैलिटी वो कहता है वो फंक्शनैलिटी वो प्रोवाइड भी करता है। ऐसा नहीं है कि जनाब के वादे वही जो है बहुत ज़्यादा होते हैं फंक्शनैलिटी के बारे में, लेकिन जो एक्चुअल फंक्शनैलिटी होती है वो बहुत कम होती है। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ओटिस एलिवेटर है, ठीक है, उसके जो है वो सॉरी ई लॉजिस्टिक इनिशिएटिव जो है वो उसके की प्रोसेसेस कौन कौन से थे, ठीक है। जो पहला जो था प्रोसेस वो था जनाब इनका प्रोजेक्ट प्रपोजल्स, ठीक है। ट्रेडिशनली जो है वो आपके जो प्रोजेक्ट प्रपोजल्स थे वो बेसिकली जो है वो मैनुअली ड्रिवन थे, ठीक है। लेकिन अब ई लॉजिस्टिक प्रोग्राम के आने के बाद जो है वो इनके जो प्रोजेक्ट प्रपोजल्स थे they were totally handled using a web based system, so there was no paper involved at all. जो सेकंड जो प्रोसेस था वो था जनाब इनका सेल्स प्रोसेसिंग, ठीक है। अभी जो सेल्स प्रोसेसिंग थी what happened that since they were using an IT system, so all the orders from the customers, right, basically the service calls, they were booked electronically. They were validated electronically, and they were scheduled electronically, ठीक है। और ये जो सिस्टम था इस सिस्टम से जो है वो अब इनके जो सुपरवाइजर थे, ठीक है, सिस्टम जो था वो फील्ड सुपरवाइजर को जो है वो इंटीमेट करता था कि जनाब कि ये सर्विस कॉल जो है वो आपके पास जो है वो आ गई है, ठीक है। सो यू शुड गो देयर एंड विजिट द इंस्टॉलेशन साइट, ठीक है। इसके बाद जो है जब आप इंस्टॉलेशन साइट जो है जब आप विजिट करते थे, ठीक है, तो वहाँ पर फिर आप ये भी देखते थे कि जनाब कि आपके पास जो है वो क्या चीज़ें जो है आपके पास ऑलरेडी जो है अवेलेबल हैं, ठीक है, क्या चीज़ें जो है वो आपके पास जो है वो अवेलेबल जो है वो नहीं है, ठीक है। और क्योंकि पहले जो है वैसा भी होता था कि जनाब की कोई एक जो इंस्टॉलेशन साइट जो है होती थी, इंस्टॉलेशन साइट पे इनके पास जो काफ़ी जो उनका मटेरियल होता, वो मटेरियल जो था वो उनका इन साइट मौजूद होता था, लेकिन जिसके बारे में जो है वो ओटिस एलिवेटर को कुछ पता नहीं होता था कि ये सामान जो है ये हमारा इंस्टॉलेशन साइट के पास जो है मौजूद है। तो न्यू सिस्टम के आने के बाद जो है ये बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो उनकी जो है वो रिजॉल्व हो गई, ठीक है। ये जो पेपर फिल्ड इन बॉक्सेस का मतलब जो था वो ये था कि जनाब के जो रिपोर्ट्स होती थी, कस्टमर की जो क्वेरीज होती थी, ठीक है, दे यूज टू हैंडल देम यूजिंग पेपर, ठीक है, मैनुअली इनको जो है ये प्रोसेस करते थे। लेकिन अब ई लॉजिस्टिक प्रोग्राम के आने के बाद जो है ये तमाम का तमाम पेपर वर्क जो है वो रिमूव हो गया। जी, थर्ड जो इनका जो प्रोसेस था वो था जनाब ऑर्डर फुलफिलमेंट, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर फुलफिलमेंट जो थी वो बड़ा एक रेडिकली जो है वो चेंज हो गई, ठीक है, आफ्टर दिस ई लॉजिस्टिक सिस्टम, ठीक है। अब इनके जो रीजनल सेंटर्स थे, दे एक्चुअली स्टार्टेड मैनेजिंग द सप्लाई चेन फ्रॉम द फैक्ट्री टू द फील्ड इंस्टॉलेशन, ओके। जो इनके रीजनल सेंटर्स थे, ठीक है, दे आल्सो started coordinating across all subsystem integrators and distribution centers, okay, so that the product could get to the field just in time, okay. Now with this e-logistics system, their regional center managers were now taking Otis as an integrated series of processes as opposed to flow product. तो ये जो सिस्टम था, सिस्टम का जो एक बेसिक बेनिफिट जो अचीव हुआ ओटिस एलिवेटर का वो ये हुआ कि अब इनके जो डिफरेंट डिविजन थे, नाउ दे वर कंसिडरिंग देयर बिजनेस एज अ इंटीग्रेटेड सीरीज ऑफ प्रोसेसेस। याद रहे कि ओटिस एलिवेटर जो था वो अपना जो फोकस था वो अब चेंज कर रहा था, ठीक है। नाउ दे वर बिकमिंग अ सर्विस फर्म रादर देन अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म। सो एक सर्विस फर्म के लिए जो है वो जो प्रोसेसेस होते हैं, दे आर एवरीथिंग। अगर आपके प्रोसेसेस जो है वो सही नहीं है तो आप कभी भी जो है वो जो डिजायर्ड लेवल ऑफ सर्विस है उसको आप अचीव नहीं कर सकते। सो
अब ये बिलीव तमाम के तमाम बिजनेस जिनके डिविजन्स का कि जनाब के नाउ वी आर नाउ आफ्टर द basically the coming of the e-logistics program, the business of Otis has now become a series of integrated process was a significant achievement कि अब जो है वो हम एक सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस की तरफ जो है हम लोग मूव कर रहे हैं. Then the next process was the field installation. ठीक है. अब फील्ड इंस्टॉलेशन के लिए जनाब सबसे पहला स्टेप जो था वो क्या था, वो ये कि जनाब के एक एलिवेटर की डिमांड जो है उसको पहले प्लेस किया जाए. ठीक है. जब तक जो है वो डिमांड जो है वो यहाँ पर जो है वो नहीं आएगी तब तक जो है वो सिस्टम जो है वो बेसिकली इनिशिएट नहीं करेगा. ठीक है. ओके. अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इस ई लॉजिस्टिक्स सिस्टम के आने के बाद खास तौर से ये जो फील्ड इंस्टॉलेशन थी, ठीक है, ये सिस्टम जो है मूव उस वक्त तक नहीं करता था कि जब तक जो है वो डिमांड ऑफ एन एलिवेटर ना है. ठीक है. तो उससे जो हमको फायदा जो है वो ये हुआ कि जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था कि जो अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री मौजूद था, ठीक है, जो फील्ड में मौजूद था, ठीक है, वो बड़ा सिग्निफिकेंटली जो है वो रिड्यूस हो गया. ठीक है. क्योंकि जो न्यू सिस्टम था, ठीक है, ई लॉजिस्टिक्स सिस्टम, वो एक पुल बेस्ड सिस्टम था. पुल बेस्ड सिस्टम का मतलब जो है वो ये होता कि जनाब के जब तक जो है वो फील्ड से रिक्वायरमेंट नहीं आएगी तब तक जो है वो एलिवेटर या दूसरा जो इन्वेंट्री है वो हम फील्ड में नहीं भेजेंगे. इससे पहले जो है क्या होता था कि जो सिस्टम था वो पुश बेस्ड सिस्टम था. पुश बेस्ड सिस्टम में क्या था कि जनाब कि अगर जो है वो तब जरूरत नहीं भी है तो हमने जो है सामान भेज दिया कि जनाब कि ओके चलो अब फ्यूचर में जो है वो हम इसको जाके जो है वो हम इंस्टॉलेशन करेंगे. ठीक है. लेकिन अगर फ्यूचर में जो है वो इंस्टॉलेशन नहीं होती है, डिले हो जाती है, या कस्टमर जो है वो वही कहता है कि जनाब कि मुझे जो है वो उस चीज़ की जो है मजीद जरूरत नहीं है, या कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमारा एक्सपायर हो जाता है, तो उस सूरत में जो है वो हमारी इन्वेंट्री जो है वो अनयूज बेकार में जो है मतलब फील्ड में जो है ज़ाया हो रही है. तो इस नए सिस्टम के आने के बाद जो है वो एक और बेनिफिट हमको जो अचीव हुआ या ओटिस एलिवेटर का अचीव हुआ वो ये हुआ कि नाउ द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री प्रेजेंट इन द फील्ड वाज रिड्यूस्ड. इसके बाद जनाब जो फिफ्थ जो इनका जो प्रोसेस था वो था जनाब क्लोजिंग एक्टिविटीज. ठीक है. दैट इज फाइनल बिल कि जनाब आपने जो है वो अब जब तमाम का तमाम आपने काम कर लिया, इंस्टॉलेशन कर दी, सर्विस कर लिया, तो अब आप जो है वो फाइनल बिल जनरेट करते थे कस्टमर को. ठीक है. जिसको कस्टमर पे किया करता था. नाउ they had a very important integrated system. ठीक है. कि जिसको यूज करते हुए जो है ओटिस एलिवेटर ना सिर्फ अपना जो सर्विस लेवल था, ठीक है, उसको जो है वो हाई करने में कामयाब हुआ, बल्कि अपने सर्विस क्वालिटी लेवल को भी इम्प्रूव करने में कामयाब हुआ, और अपनी जो फाइनेंशियल बॉटम लाइन थी उसको भी इम्प्रूव करने में कामयाब हुआ. ठीक है. Now, this slide actually talks about some of the benefits, the major benefits of the new system. कुछ चीज़ों की तो मैंने ऑलरेडी मैंने बात कर दी. ठीक है. सर्विस क्वालिटी लेवल की मैंने बात कर दी, सर्विस लेवल की मैंने बात कर दी, फाइनेंशियल बॉटम लाइन की जो है मैंने बात कर दी. ठीक है. एफिशिएंसी जो थी इनके स्टाफ की, ऑफ कोर्स एफिशिएंसी जो है बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज हो गई. ठीक है. जो साइकिल टाइम था, ठीक है, दैट इज the call to install the elevator till the elevator installation is finished. ठीक है. वो साइकिल टाइम जो है उनका बहुत ज़्यादा जो रिड्यूस हो गया. ठीक है. कस्टमर सर्विस लेवल जो है वो उनका जो है बहुत ज़्यादा जो है इम्प्रूव हो गया. सेल्स प्रोडक्टिविटी जो है वो उनकी जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई. ठीक है. नाउ विद ऑल दोज बेनिफिट्स व्हाट आर द चैलेंजेस. ठीक है. कि ये जो वो काम कर रहे हैं, न्यू सिस्टम भी उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिए हैं, तो अगर हम आगे देखें मतलब क्या लॉन्ग टर्म में जो है वो ओटिस जो है वो अपनी इस सक्सेस रेट को जो है वो मेंटेन कर पाएगा. ठीक है. सिमिलर टाइप ऑफ सक्सेस को जो है वो अचीव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा. ठीक है. सो देयर आर मैनी चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ ओटिस विद रिस्पेक्ट टू अचीविंग द सिमिलर काइंड ऑफ सक्सेस और अचीविंग मोर सक्सेस. द फर्स्ट इज द कल्चरल चेंज. ठीक है. ये मैंने आपको पहले ही बात बताई थी कि 150 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है. तो अगर लॉन्ग टर्म में जो है वो उनको अपनी इस सक्सेस लेवल को जो है मेंटेन करना है, या इसको जो है फर्दर जो है उनको इंक्रीज करना है, तो उन्हें जो है वो एक स्ट्रेटजिक प्लान चाहिए दैट हाउ दे आर गोइंग टू मीट विद दिस कल्चरल चेंज. ठीक है. द सेकंड चैलेंज इज द टेक्निकल चैलेंज. ठीक है. अब ये टेक्निकल चैलेंज क्या है कि जनाब इन्होंने ये जो सिस्टम बनाया है, ठीक है, इस सिस्टम को जो है वो इन्होंने अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द ओटिस एलिवेटर जो है उन्होंने इंप्लीमेंट करना है. और रियल चैलेंज क्यों है उसकी वजह जो है वो ये है कि दैट द ओटिस एलिवेटर, ठीक है, हैज 20,000 कंप्यूटर्स. ठीक है. स्प्रिंग के केस में हमने देखा था कि स्प्रिंग के केस में उनके पास 3,600
डेस्कटॉप कंप्यूटर्स थे कि जिस पर जो है वो उन्होंने एक यूनिफॉर्म सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे थे या स्टैंडर्डाइजेशन करने की बात कर रहे थे। ओटिस एलिवेटर के केस में देयर आर 20,000 कंप्यूटर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, so their challenge of standardization or implementing a robust system across the board is much more intensive as compared to springs.com. The third challenge is the global deployment challenge. Okay, Otis is operating in 200 countries and there are 1,800 operating locations. So now imagine 20,000 computers, 200 countries, 1,800 operating locations. Okay, so challenge is very significant. और ग्लोबल डिप्लॉयमेंट चैलेंज हम की जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये चैलेंज जो है मतलब इसको आप इस तरह से लें कि अब आपको जो है वो जब 1,800 ऑपरेटिंग लोकेशंस पे जो कि दे विच आर स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब, जब उनके ऊपर जो है वो आपको ये सिस्टम जो है जब आपको इम्प्लीमेंट करने होंगे, सो ऑफकोर्स हर लोकेशन की जो है वो डायनामिक्स जो है डिफरेंट होती है. So you are not only going to take into account the cultural resistance, you are only going to take into account the unique difficulties that may arise due to a unique operating location. Then uh, they also need to look into fact that what they are actually going to implement. They are going to managerially driving a standard process while at the same time maintaining local empowerment. इन्होंने प्रोसेस को तो स्टैंडर्डाइज करना है, लेकिन इन्होंने प्रोसेस को जो है वो इस तरह से स्टैंडर्डाइज नहीं करना है कि जनाब के जो उनकी टॉप मैनेजमेंट है वही तमाम चीज़ों को कंट्रोल करेगी. ठीक है, दे विल बी एम्पावरिंग द people operating at a particular location to run the process, right? लोग उस प्रोसेस को चेंज नहीं कर सकते, द प्रोसेस इज स्टैंडर्डाइज, ठीक है, लेकिन उस प्रोसेस को रन करने की जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो टॉप मैनेजमेंट के ऊपर नहीं होगी, वो उस ऑपरेटिंग लोकेशन पे जो उनका स्टाफ मौजूद है उसी स्टाफ की जिम्मेदारी होगी. सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि जनाब हमने प्रोसेस को तो स्टैंडर्डाइज कर दिया है, लेकिन जिस प्रोसेस को रन करने की जिम्मेदारी जो है वो उस लोकेशन पे बैठे हुए लोगों की होगी. अब प्रॉब्लम जो है वो ये है कि जनाब के उस लोकेशन पे जो लोग बैठे हुए हैं और जिस लोकेशन पे जो स्टाफ मौजूद है, ठीक है, वो कितना केपेबल है, आईटी को जो है वो कितना समझता है. ठीक है, सो दिस लोकल एम्पावरमेंट कैन बिकम अ चैलेंज एट मैनी लोकेशंस फॉर दैट. ठीक है जी. So with this, the discussion of the two case studies of today, that is the Springs.com and the Otis elevator, is concluded. Okay, so this the discussion is concluded from my side. Now, as per our standard operating procedure, uh, now I shall ask you, the participants, for any questions that you might have. So